प्लस ये हमारी कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में की जाती है, इसको अलग अलग नाम दिया गया है जो कि आपने देख लिया है। फर्स्ट, झूमिंग, जिसे आपने यहाँ पे पढ़ा कि झूमिंग इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। सेकेंड इज इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है? दिस फार्मिंग इज अप्लाइड ऑन दोज पार्ट ऑफ आवर कंट्री वेयर पॉपुलेशन pressure is high. It's a labor intensive farming. Its target is to achieve high production with the help of high doses of biochemical inputs and irrigation. ये हमारी कंट्री के उस पार्ट में किया जाता है जहाँ पे कि पॉपुलेशन का प्रेशर लैंड पे बहुत ज़्यादा हाई है। ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है। इसका टारगेट ये रहता है कि जैसे हमने पढ़ा कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है वो कम होता है, सिर्फ फैमिली या कम्युनिटी के लिए होता है। लेकिन इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है वो सेल करने के लिए होता है, ये बेनिफिट कमाने के लिए होता है, इसलिए इसमें लेबर इम्पॉर्टेंट है। हायर प्रोडक्शन इसका टारगेट है। हायर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जहाँ हम प्रिमिटिव सबसिस्टेंस में सिर्फ नेचुरल फर्टिलिटी है सॉइल की, उस पर डिपेंड करते हैं, लेकिन हम इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में बायोकेमिकल्स भी यूज़ करते हैं और हम इरिगेशन के आर्टिफिशियल रिसोर्सेज को भी यूज़ करते हैं। कमर्शियल फार्मिंग हैज़ मैनी टाइप्स: कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग एक्सेट्रा। इन प्लांटेशन अ सिंगल क्रॉप इज़ grown on a large area. This crop is used as raw material in food industries. Farming is done mostly by migrant laborers. Tea, coffee, sugarcane, banana, etc. are some of the plantation crop in India. Tea in Assam and North Bengal, coffee in Karnataka are some important plantation crop grown. This production are grown for market, so a well developed of transportation and communication is connected to the plantation market. Related industries and markets are equally important in development of plantation farming. Now यहाँ तक आप ये पढ़ते हैं। Now the cropping pattern. Cropping pattern means the proportion of area under different crops at a point of time. Changes in the distribution over time and factors determining these changes. Multiplicity of cropping system has been one of the main feature of Indian agriculture. India has 3 cropping pattern. हमारी इंडिया में, हमारी कंट्री में 3 मेन क्रॉपिंग पैटर्न है, क्रॉपिंग सीजन्स हैं, दैट इज़ रबी, खरीफ एंड जायद। रबी क्रॉप और रबी हार्वेस्ट आर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स दैट आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर और दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन द स्प्रिंग फ्रॉम अप्रैल टू जून। Wheat, barley, peas, gram, mustard, etc. are some of important rabi crops. These crops are grown in north to north western part such as Punjab, Haryana, Himachal, Jammu Kashmir, Uttarakhand, UP. And UP are UK and UP are 2 most productive states in context of wheat and other rabi crops. उत्तराखंड और यूपी जो है यहाँ पे वीट और जो बाकी रबी क्रॉप्स हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं। सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ precipitation during October to December. This precipitation is produced by western temperate cyclone. One more important reason for the growth of the rabi crop is the success of green revolution in the states like Punjab or Haryana, western UP and part of Rajasthan. Now Kharif, this crop
that are the crop that are sown in the rainy season are called kharif crops. That is also known as the summer or monsoon crop in India. Kharif crop are usually sown with the beginning of the first rain in July during the southwest monsoon season. Important kharif crops are paddy, maize, jawar, bajra, tur, moong, urad, cotton, jute, groundnuts and soyabean. Assam, West Bengal, coastal region of Odisha, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Kerala, Maharashtra, particularly जो कोंकण कोस्ट है, along with the UP and Bihar are some rice productive states. Now, paddy has become an important crop in Punjab and Haryana also. In Assam, West Bengal and Odisha, these 3 crops of paddy are grown in a year. आसाम में, वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में पैडी की 3 क्रॉप्स एक साल में ली जाती हैं. इन क्रॉप्स को हम कहते हैं अस, अनम एंड बोरो. यहाँ लिखा हुआ है अस, अमन एंड बोरो. नाउ जैद. दिस इज़ द क्रॉप विच इज़ सोन इन द स्टार्टिंग पीरियड बिटवीन द रबी, जो बीच का पीरियड होता है, शॉर्ट पीरियड. दिस क्रॉप इज सोन इन द शॉर्ट पीरियड between the Rabi and Kharif season. This season is known as Zaid season. Some important Zaid crops are watermelon, muskmelon, cucumber, vegetable and other fodder crops. Sugarcane is grown in a year. यहाँ हमने पढ़ा रबी, खरीफ एंड जैद. जो रबी क्रॉप है ये इन शॉर्ट अक्टूबर से दिसंबर तक सोन की जाती है एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून. खरीफ क्रॉप जो है वो मॉनसून की स्टार्टिंग में इसको हम लगाते हैं और हार्वेस्ट कब करते हैं, सितंबर से लेके अक्टूबर में. और जो जायद क्रॉप है इसको दोनों क्रॉप्स के बीच में जो शॉर्ट गैप रहता है उसमें इसको बोया जाता है. नाउ मेजर क्रॉप्स. फर्स्ट इज राइस, wheat, millets, maize, pulses, ये तो जो हमने पढ़ा था अभी तक, ये तो फूड क्रॉप्स हैं. मीन्स राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज़, पल्सेस जो हैं ये फूड क्रॉप्स हैं. और फूड क्रॉप्स के अलावा जो ग्रेन्स हैं, इसके अलावा जो फूड क्रॉप्स हैं, ये जो हमने पढ़ा ये ग्रेन्स हैं. और ये फूड क्रॉप्स क्या हैं, शुगर क्रेन है, ऑयल सीड्स हैं, टी एंड कॉफ़ी है. इनके अलावा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं. ठीक है. देन नॉन फूड क्रॉप्स, रबर, फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जूट. इन सबको आप ये समझें कि जो ग्रेन्स हैं, जो फूड ग्रेन्स हैं वो फूड की डिमांड को पूरा करेंगे. देन शुगर केन और ऑयल सीड, टी और कॉफ़ी, ये सब इंडस्ट्रीज़ में इनको रिफॉर्म करके सेल किया जाता है. ये प्राइमरी फॉर्म में सेल होंगे. ये इनको रिफ़ाइन करेंगे, फिर ऑयल सीड से पहले ऑयल निकालेंगे, शुगर केन से पहले चीनी निकालेंगे, टी को रिफ़ाइन करेंगे, कॉफ़ी को रिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद में काम में ले जाते हैं. हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो है ये इसको बोलते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल क्रॉप्स को. इसमें ये डायरेक्टली काम में लिए जाते हैं. इसके अलावा नॉन फूड क्रॉप जो है ये किसी भी इंडस्ट्री में एज रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं. नाउ टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. यहाँ पे आप सारी जितनी भी क्रॉप्स अभी तक आपने पढ़ी है उसके बारे में बुक से दोबारा स्टडी करेंगे. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.